Friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Libra Ascendant and the predictions for the month of April 2023. So starting with the Ascendant Lord Venus is going to transition through the 8th house from 6th of April to 1st of May. And though Venus here is in its own sign, the negative energies of the 8th house would mean that you would experience stress during this time frame, especially from some female. This position also means that you will enjoy good time with the family members of your spouse through a social or a personal gathering. Venus also indicates luxury, fashion wear, and vehicles. And 8th house is the house of accidents. So you should avoid driving vehicle during this time frame of 6th of April to 1st of May. Now looking at other planets, Jupiter is going to move to the 7th house from 22nd of April, and for the next 1 year it is going to create opportunities for the unmarried people to get married during the transit. People of Libra ascendant will also experience good time on the professional front from 15th to 17th of April, and then again from 24th to 26th of April. That's because Jupiter is the lord of your service, and it is going to move into the house of business where Sun is also present. So you will have a good time on both the job as well as business during the dates that I have specified earlier. Mars and Mercury are also exchanging signs. Mars is present in the house of Mercury and Mercury is present in the house of Mars. These houses that are involved are 7th and 9th houses, and both of them are considered good houses. This means that you will be able to go for a long-term travel with your spouse or a partner in this month, and the best time frame to spend time with your spouse as well as traveling will be from 15th of April to 23rd of April. Saturn is the lord of your fifth house and it will continue to transit through the fifth house. Saturn is a highly benefic planet for you, and if you happen to be a student, then this month will be very fruitful for you, and the time frame of 9th to 11th of April and again from 21st to 23rd of April will be exceptionally good for you. You can appear for any kind of a competitive exam and you will find success in the same. If you are interested in speculation, then the best time frame for you in April is from 9th to 11th of April, and then at the end of the month from 27th to 30th of April. Libra ascendant people should invest in the stock market with a long term perspective or horizon, because Saturn is their fifth house lord, and Saturn itself means slow gains over a period of time. It is not going to give you immediate results. And if Saturn is well posited in anywhere in your chart, for example, it's in the fifth house, seventh house, ninth house, 11th house, or first house in your birth chart, then you can think of going long in the stock markets. And the sectors which I have observed that benefit the Libra ascendant people the most are petrochemicals, cements, fertilizers, pharmaceuticals, and government securities. These are the sectors where Libra ascendant people invest and derive benefits over the longer time frame. But the short-term trading is not something that is beneficial for them, because it is against the inherent nature of their ruling planet, which happens to be Saturn. Now, Rahu and Sun are also going to experience conjunction in the seventh house, which means that you should avoid taking an aggressive approach with your spouse whenever any kind of a communication is taking place. It doesn't matter whether you are in the house or you are traveling together, any kind of ego issues strictly needs to be avoided in the month of April. It is better to keep yourself restrained in this month, whether you are dealing with your spouse or even with your business partner. Now, there are certain dates where you need to remain cautious in the month of April and avoid taking any key decisions. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for your ascendants, these dates are 12th, 13th, and 14th of April, 18th, 19th, and 20th of April, and 29th and 30th of April. Avoid taking any key decisions during the days that I have just specified. See, overall, if you can keep your ego under check and not get into an argument with your spouse, then this is a very good time
to enjoy with the family members of your spouse. Go on a long distance travel with them. Avoid arguments and trying to be happy with your spouse. In short, have some fun in this month. So that's the summary for you. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुला लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्नेश की बात करें तो लग्नेश शुक्र अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि शुक्र अपने ही राशि में है, लेकिन अष्टम भाव एक पीड़ादायक स्थान होता है। इसलिए 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक के समय में तुला लगने के लोगों को कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां आएंगी, क्योंकि ये स्ट्रेस देने वाला ही स्थान है। और यहाँ पर चूंकि शुक्र की ही राशि और शुक्र विराजमान है, तो आपको ये तनाव किसी फीमेल की वजह से आ सकता है। देखिए, इस पोजीशन में जब शुक्र है तो ये स्पाउस की, आपके पति या पत्नी की फैमिली को भी दिखाता है, और शुक्र मतलब मौज या मजा। तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस के फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप उनसे या तो खुद के घर में कोई फंक्शन होगा तो कनेक्ट होंगे, या आपको कहीं वो बुलाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। शुक्र लग्जरी का भी कारक है और व्हीकल्स का भी कारक है, और अष्टम भाव एक्सीडेंट्स का भी कारक होता है। तो यहाँ पे आपको इस महीने में 6 अप्रैल से 1 मई के समय में अपना व्हीकल बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, और अगर हो सके तो किसी और को ड्राइव करने के लिए बोलिए इस समय में। नहीं तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा करने वाला योग है। गुरु आपके 6वें भाव में बैठे रहे साल भर से, वो सप्तम भाव में मूव कर जाएंगे 22 अप्रैल को, और अगले 1 साल तक जितने भी लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी करने का योग बनाएंगे गोचर में। अब महादशा अंतरदशा देखने के बाद पता लगेगा कि वो फलीभूत होता है कि नहीं। इसके अलावा चूंकि गुरु 6वें भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में मूव करेंगे बिजनेस के भाव में, और सप्तम भाव का स्वामी भी नवम भाव में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे जॉब करते हैं या सर्विस, उनके लिए अप्रैल के महीने में 15 से 17 अप्रैल का समय सबसे अच्छा रहेगा, और इसके बाद 24 से लेकर 26 अप्रैल तक का समय भी बहुत अच्छा है प्रोफेशनली अगर आप देखें तो। मंगल और बुध आपस में स्थान परिवर्तन करेंगे अप्रैल के महीने में, सप्तमेश नवम भाव में और नवमेश सप्तम भाव में बैठे होंगे। इनका ये भाव बदलना ये दिखाता है कि आप अपने पति पत्नी या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रैवल कर सकते हैं इस महीने में, क्योंकि नवे भाव से आप लॉन्ग टर्म जर्नीज देखते हैं। और 15 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का समय आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म ट्रैवल करने के लिहाज से सबसे अच्छा है, और इस समय में आप अपने पार्टनर की कंपनी को एंजॉय भी कर सकेंगे। एक नज़र शनि पे डालते हैं। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, और पंचमेश भी हैं। तो पंचमेश का पंचम से भ्रमण अच्छा ही कहलाता है और योग कारक ग्रह है, और अगर आपकी महादशा चल रही है तो आपको इससे और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप छात्र हैं तो अप्रैल का महीना भी आपके लिए अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के दृष्टि से। और स्टूडेंट के लिए जो महीने में सबसे अच्छे दिन है वो है 9 से 11 अप्रैल और 21 से लेके 23 अप्रैल तक। अगर आप स्पेकुलेशन में या शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे अच्छा समय आपके लिए 9 से 11 अप्रैल और फिर 27 से 30 अप्रैल का है। देखिए, तुला लगने के लोगों को हमेशा शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचना चाहिए। अगर शनि प्रथम भाव में होता है तो इनको एक लॉन्ग टर्म विजन भी होता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी शनि है, और शनि कोई भी चीज़ व्यक्ति को जल्दी नहीं देता। तो जितने भी लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड्स लेना चाहते हैं, उनके लिए तुला लग्न के लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं होता, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद फल देने वाला है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये शनि आपके लिए धीरे धीरे वेल्थ बनाने का कार्य करता है। और मैंने ऐसे काफ़ी तुला लगने के लोगों की कुंडली देखी है जिन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, क्योंकि आपके 11वें भाव में भी सूर्य की राशि आती है जो कि गवर्नमेंट से लाभ दिखाता है। तो इन सब सेक्टर्स में अगर आप लंबा टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका शेयर मार्केट से पैसा बनेगा, क्योंकि शनि ही आपका पंचम भाव का स्वामी है, और इसकी वजह से धीमी गति से किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही तुला लग्न वालों को ज़्यादा सूट करता है। राहु और सूर्य सप्तम भाव में युति करेंगे तो ये एक तरह का ग्रहण योग होता है।
तो सप्तम भाव में इसके अलावा चूंकि सप्तमेश और नवमेश भी स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा आपके सप्तम भाव में कलेक्ट हो रही है। तो इस समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने पति पत्नी या पार्टनर्स के साथ झगड़े में मत पड़िए। राहु गलत फहमियां पैदा करने का कार्य करता है, तो किसी भी सिनेरियो को अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद आप अपना पक्ष रखिए, और कोई किसी भी तरह का ईगो इशू मत आने दीजिए, क्योंकि सूर्य ईगो का, अहम का जन्मदाता होता है। तो अगर आप अपने आप को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस महीने में रखेंगे और अपने पति पत्नी के साथ अगर अवॉइड करेंगे आर्ग्यूमेंट, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा निकल सकता है। अभी महीने में कुछ दिन आपको सावधान रहना पड़ता है, और इन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपको टालना चाहिए। तो अप्रैल के महीने में जो डेट्स हैं जो आपको सावधान रहना चाहिए वो है 12, 13 और 14 अप्रैल, 18, 19 और 20 अप्रैल, और 29 और 30 अप्रैल। इन दिनों में कोई भी की डिसीजन लेना आप टालिए। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये समय है कि आप अपने पति या पत्नी के फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कीजिए समय को। उनको आप सोशल सेटिंग्स में मिलें या फिर आपके खुद के घर में फंक्शन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ टाइम आप स्पेंड कीजिए, उनकी कंपनी एंजॉय कीजिए। 15 से लेकर 23 अप्रैल के बीच में आप अपने पति पत्नी के साथ किसी लॉन्ग टर्म ट्रैवल पे जाइए, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिए। कुल मिला के इस महीने में अपने पति पत्नी और उनके परिवार वालों के साथ मिलके मौज कीजिए। तो ये समरी है आपकी इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।